Hi friends, today we are going to discuss about the company's Fresh Start Scheme 2020 introduced by MCA by notification dated 20th March 2020. Now we will discuss about the objective of this scheme. As you all are aware, due to the sudden outbreak of novel COVID-19, the financial burden on companies have been increased a lot. To give some relaxation, it's a step taken by the government to reduce the financial burden of companies by providing them one-time opportunity for filing their pending documents without being charged any additional fee. तो इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्कीम इज इंट्रोड्यूस टू अलाउ ऑल दोज डिफॉल्टिंग कंपनीज विच हैव नॉट फाइल्ड द पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स like which also includes the financial statements, annual return, etc. So now we will check the period and applicability of the scheme. The scheme shall be effective from 1st April 2020 to 30th September 2020. So the department has given the 180 days time limit for all those defaulting companies who have not filed the pending documents. The scheme is applicable to all the defaulting companies which have made a default in filing of any of the documents, statements, returns, etc., including annual statutory documents. Further, we will check on which form this scheme is applicable. There are total 76 forms on which the scheme is applicable. List of forms have already been uploaded on the MCA website. I have mentioned some of the forms from there. Number 1 is ADT 1, that is for appointment of auditor, AOC 4 for filing financial statement, MGT 7 for annual return, ADT 3 for notice of resignation by auditor, DR 12 appointment of directors and KMP, DR3 KYC, application for KYC of directors, INC 22A. So if company has not filed any of these forms, it can file now and without any additional fee. नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द स्कीम. अब ये स्कीम किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है उसकी हम बात करते हैं. उन कंपनीज़ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है जिनके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट एक्शन ले चुके हैं स्ट्राइक ऑफ करने का आरओसी से उनके नेम को. जहाँ पे कंपनीज़ ने STK 2 में अपना नाम स्ट्राइक ऑफ करने के लिए एप्लीकेशन लगाई है आरओसी को, उन पर भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. कंपनीज़ जो अमेलगमेट हो चुकी हैं वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. कंपनीज़ जिन्होंने डोमेंट स्टेटस के लिए एप्लीकेशन फाइल की हुई है वो भी इस स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. वैनिशिंग कंपनीज़ पे ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. जहाँ पे कंपनीज़ का स्टेटस लिक्विडेशन में है, मार्क्ड एज लिक्विडेशन है, उन पे भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. जहाँ पे किसी भी कंपनी में इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल इन्वॉल्व है, कभी भी एक कंपनी में ऑथराइज शेयर कैपिटल बड़ी होगी और उसके लिए फॉर्म SS7 जाता है, वो कंपनी ने फाइल नहीं किया है, तो फॉर्म SS7 के लिए ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. एंड जितने भी चार्ज रिलेटेड फॉर्म्स हैं उन पर भी ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है. Now we will see the benefits of opting this scheme. क्या बेनिफिट्स हैं अगर इस स्कीम को ऑप्ट करते हैं तो. एक डिपार्टमेंट ने एक बहुत अच्छा चांस दिया है डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ को कि वो इस स्कीम को अवेल करके अपने सारे पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकें बिना किसी एडिशनल फ़ी के और मोर कंप्लाइंट बन सकें. और इसको करने के बाद जो है इम्यूनिटी ग्रांट हो जाएगी कंपनी को किसी भी प्रोसिक्यूशन या प्रोसीडिंग्स में जो फ्यूचर में उसके अगेंस्ट में हो सकती हैं. Scheme for inactive companies. So for inactive companies, it's a very good opportunity. What they can do is, after filing all the pending documents, they can either apply for dormant status by filing e-form MSC1 at a normal fee, or they can apply for strike of their name from RFC at a normal fee. Now we will discuss about the procedure under the scheme. बेसिक प्रोसीजर क्या है इस स्कीम में. जितनी भी डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ हैं वो पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करेंगे. अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के बाद ये स्कीम क्लोज हो रही है 30th सितंबर 2020 को. उस स्कीम के क्लोज होने के 6 मंथ्स के अंदर, जैसे कि ये स्कीम 30th सितंबर 2020 को क्लोज होती है, तो 6 मंथ्स मतलब 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक कंपनी को CFSS फॉर्म 2020 फॉर्म फाइल करना है, जिसके अंदर उनको डिक्लेरेशन देनी है कि उन्होंने ये स्कीम अवेल की थी.
उस डिक्लेरेशन के बेसिस पे एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट होगा सारी डिफ़ॉल्टिंग कंपनीज़ को जिन्होंने भी ये स्कीम अवेल की है डिपार्टमेंट से, जिससे कि जितनी भी फ्यूचर में उनके प्रोसिक्यूशंस होने वाली थी उनके अगेंस्ट में, उसके अगेंस्ट में उनको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट ग्रांट होगा। इशुएंस ऑफ इम्यूनिटी सर्टिफिकेट कैसे इशू होगा, जैसे कि मैंने अपनी लास्ट स्लाइड में बताया कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए कंपनी को फॉर्म CFSS 2020 फाइल करना होगा स्कीम के क्लोजर के 6 मंथ्स के अंदर। क्लोजर लास्ट डेट क्या है उसकी 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 के बाद आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते और इस फॉर्म को फाइल करने की कोई भी फीस नहीं है। अब हम बात करते हैं कि इम्यूनिटी सर्टिफिकेट किस किस कंपनीज़ को नहीं मिल सकता। इफ़ कोई भी अगर अपील कि पेंडिंग है किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या कोई भी मैनेजमेंट डिस्प्यूट चल रहा है कंपनी में और वो पेंडिंग है कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल में, तो वहाँ पे इम्यूनिटी ग्रांट नहीं की जाएगी। दूसरा, जहाँ पे कोई भी कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कन्विक्शन का किसी भी मैटर में या कोई पेनल्टी इम्पोज की है और उस कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में कंपनी ने कोई अपील प्रेफर नहीं की है, तो उस केस के अंदर भी इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड की जाएगी। So what happens on the conclusion of this scheme? On the conclusion of the scheme, the department will take the necessary action against all those companies which have not availed this scheme and are in still default in filing those documents on time. So with this, I am concluding with today's topic. If you have any query, you can ask in the comment section.